Students, some special words. Reading some special words for speaking English, standard English. Number one track mind. ONETRACK. One track mind means a person who thinks continuously about one subject. हमेशा एक ही सब्जेक्ट में सोचते रहते हैं उसको वन ट्रैक माइंड बोलते हैं. ONETRACK. वन ट्रैक माइंड means a person who thinks continuously about one particular subject. एक ही सब्जेक्ट में हमेशा सोचते रहते हैं उसको वन ट्रैक माइंड बोलते हैं. नेक्स्ट वन, ए टू टाइमर. ए TWO टू टाइमर TIMER मीन्स ए पर्सन हु इज अनफेथफुल. इसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते आदमी को क्या बोलते हैं? टू टाइमर. TWO टू टाइमर TIMER. Unfaithful person, can't believe that person. Okay. Example, most of the politicians are generally considered to be two-timers in our country. Most of the politicians are generally considered to be two-timers in our country. Example. Number three, double standard. Double standard मैंने कोई के घर में या ऑफिस में एक दो आदमी को प्रति प्यार या सपोर्ट करते हैं, बाकी लोगों को इतना नफरत करते हैं, इसके लिए बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड. ऐसे का घर पे DOUB डबल स्टैंडर्ड. रूल और लॉ अप्लाइड मोर स्ट्रिक्टली टू सम पीपल देन अदर्स. एग्जाम्पल, इन सर्टन फैमिलीज मदर्स आर कीपिंग डबल स्टैंडर्ड एट होम. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ द डॉटर्स देन सन. सेवन्थ हेवन मीन्स एकदम खुश रहते हैं. SEVENTH, seventh heaven, HEAVN means extremely happy. क्रिकेट मैच देखते रहेगा भाई, अपना बर्थडे का दिन सब खुश रहते हैं एकदम, शादी का टाइम है, उसके लिए एक्सट्रीमली हैप्पी बोलते हैं. उसको बोलते हैं सेवन्थ हेवन मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, एकदम खुश. एग्जाम्पल, सम पीपल आर इन सेवन्थ हेवन व्हेन दे आर वाचिंग क्रिकेट मैच. वंस अगेन, सम पीपल आर इन सेवन्थ हेवन व्हेन दे आर वाचिंग क्रिकेट मैच. नेक्स्ट वन, 11th आवर, सबसे लास्ट टाइम में आ जाते हैं. बड़ा बड़ा फंक्शन में कोई ऐसा एकदम लास्ट मोमेंट है, उसको बोलते हैं 11th आवर. मीन्स एट द लास्ट मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन और हैप्पी फंक्शन. आदमी लोग सॉरी बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं 11th आवर बोलते हैं. ELEVENTH 11th आवर. देन स्ट्रॉन्ग इन ए टी कप, छोटा तरीका से झगड़ा घर पे औरत मर्द का थोड़ा टाइम के लिए एकदम भड़कते. ST और स्ट्रॉन्ग इन ए टी कप TACP. ए पेटी कॉर्न और नो नॉट सीरियस. नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स मीन्स दिस वर्ड्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल मैच, हॉकी एक्सेट्रा. Dark horses are able, but nobody knows about them. They may be in the village side, but they are able to play cricket and all like Sachin all, but nobody knows about it. Unknown people, but they are able. DRK, dark horse. Example, we can't say which team win in the cricket match because some dark horses are playing in the Pakistan team. Once again, we can't say which team win in the cricket match because some black horses are playing in opposite team or Pakistan team. These words especially used in hockey, football, cricket, etc. Next one, Robin Hood. ROBIN. Robin Hood means HOD. ROBIN HOD means a person who steal from rich people and give to poor. But वो नहीं लेते. पर पैसे वाले के पास जाके सब चीज़ या वीट या राइस या कपड़ा कुछ भी चोरी करके दूसरे को देते, गरीब लोग को देते, मगर वो नहीं लेते. उसको बोलते ROBIN, रॉबिन हुड HOD. Steal from rich people and give to poor people, but he never take it. Next one, romp in home. ROMP. Romp in home means win easily. एकदम easy win सकते उसको. ROMP, romp in home means win easily. Example, I am sure Indian team can romp in home next cricket match between India and Pakistan. Once again, I am sure
Indian team can romp in home. Next cricket match between India and Pakistan. Okay. Altruist, ALTRUIST means unselfish people. गरीब लोग के लिए डेडिकेट करते हैं, कुछ पैसा से लेते हैं एकदम, वो लोग का पीछे वो लोग काम करेगा, भिखारी लोग को, लेप्रोसी पेशेंट को. एग्जाम्पल मदर तेरेसा वाज altruist. Spelling ALTRUIST. Altruist means an unselfish person who has great connection with poor people. Example, Mother Teresa was an altruist. He came to India and helped the poor and needy. Then, hand in glove, HAND, hand in glove, GLOVE means close connection in a bad or illegal activity. कोई खराब काम के लिए जो हैंड इन ग्लोव करते हैं, गोल डालो ये मिलते, ऐसा करेगा, बाद में ऐसा वर्ड को hand in glove, HANDIN, in hand in glove, GLOVE means cross connection in a bad or illegal activity. Next, pipe dream, PIP, pipe dream and an impossible dream. PIP DRAM, वो ड्रीम सक्सेस नहीं रहेगा, क्यों सोचते हैं ऐसा होएगा. समझो ये लड़का या लड़की का पिताजी के पास पैसा नहीं है, इसे $8 वर्कर है, पुअर मैन, और लड़का सोचते हमको अमेरिका में जाके हायर स्टडी करने का, इम्पॉसिबल है. दैट इट्स कॉल्ड पाइप ड्रीम. छोड़ दो सच ड्रीम, मामूली बात है. पाइप ड्रीम मीन्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम. नेक्स्ट वन, लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव, LEAP. Look before you leave, LEAP. Think carefully before taking any action. जरा सोचो बाद में एक्शन करो. Look before you leave, LEAP means think carefully before taking any action. Take French leave, TAKE, take French, FRENCH, French leave, LEAV. जो डांडी मारते ना ऑफिस में, परमिशन मिला. अभी समझो कल आपको रजा लेने का, आज कैशुअल लीव के चलेगा. वेस्टर्न कंट्री में फ्रेंच लीव अलाउड नहीं, सैंक्शन नहीं करेगा. इधर कभी हो कभी भी आओ कभी जाते, ऐसा नहीं है. और उसमें बोलेगा हमारे डोंट टेक फ्रेंच लीव. टुमारो यू वांट टू टेक लीव, टुडे यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट टू द ऑफिसर और योर मैनेजर, 10T. दैट इज कॉल्ड टेक फ्रेंच लीव, मीन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन. टेक फ्रेंच लीव मीन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन. Next one, apple of discord, main reason for the dispute, झगड़े का मेन रीजन. तो क्या बोलते हैं, apple, APPLE, apple of discord, DISCORD, main reason for the dispute or quarrel. Next one, breadwinner, परिवार संभालने वाला, मेहनत करके उसको breadwinner बोलते हैं. Suppose your father is the breadwinner, काम करते हैं सबको सपोर्ट करने के लिए. Your father is the breadwinner of your family. Suppose husband है तो example, my father is the breadwinner of our family, or my husband is the breadwinner of our family. BREAD, breadwinner, WINNER means नौकरी करके घर संभालने वाला. महीने में जो पगार मिलता है टेक्सटाइल मिल में या कोई इंडस्ट्री में पार लेके आके बच्चे वाले संभालने वाले को ब्रेड विनर बोलते हैं. BREAD, breadwinner. Next one, bread and butter, livelihood को bread and butter. A fair weather friend, A fair, FAIR, so dash डालो, WEATH friend. A fair weather, WEATHR, fair weather मैंने अपने बाद अच्छा टाइम में आ जाता है, अपने टाइम खराब में भाग जाता है. अपने पास बहुत पैसा है, हाँ चलो खाया पीने का आएगा, ऐसा फ्रेंड को अवॉइड करो. ऐसा फ्रेंड को क्या बोलते हैं, A fair weather friend, FAIR, WEATHR friend. A fair friend means a friend only in with us when we are in process or good time. When the bad time they say goodbye. ऐसा फ्रेंड को भरोसा मत रखो. So always keep relation with the good friends. It is okay for your life. These words you can utilize when you talk English,
So highly qualified people using this type of words. So you can use it. Then another words, cheap cook and bottled water. CHIEF, cheap cook and bottled water mean सब काम जानने वाला, सब ऐसा होना चाहिए। कि एक ही काम सीखे तो कहीं लगे तो भी जाए तो कि नहीं तो वो इस आदमी क्या बोलते हैं, cheap cook and bottled water. Example, my husband is cheap cook and bottled water means able to do all type of work. कभी ऐसा आदमी भूखा नहीं रहेगा, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, ऐसा 4-5 काम सीख के रहेगा। उसके लिए बोलते हैं ऐसा आदमी को चीप कुक एंड बॉटल वाटर मास्टर है, सब काम में सब काम कर सकता है। ऐसा आदमी को CHIEF, चीप कुक एंड बॉटल वाटर, अंडरस्टैंड। देन माउस पोटैटो, MOUSE, माउस पोटैटो मीन्स कोई नेट का सामने जाते रहे ना, कंप्यूटर सामने मोर देन 5-7 आवर्स खाना खाने को भी नहीं, ऐसा आदमी को क्या बोलते हैं, माउस पोटैटो, MOUSE, माउस पोटैटो, POTATO, पोटैटो मीन्स ए पर्सन सिटिंग टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर और नेट, उसको उल्टेगा नहीं, वेरी बैड, ऐसा आदमी को माउस पोटैटो बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश। देन काउच पोटैटो, COUCH, काउच पोटैटो मीन्स लेसी पर्सन, काम करने को दिल नहीं, हमेशा सोते रहेगा, खाएगा सोएगा, ऐसा आदमी का बोलते हैं काउच पोटैटो, COUCH, काउच पोटैटो, COUCH, काउच पोटैटो। देन डोंकी सीड्स, DONKEY, डोंकीज डोंकी सीड्स। मैंने आपका कोई अंकल या उसको मिलके बहुत साल हो गया, सो कह रहे बहुत साल के बाद, मीन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। डोंकी सीड्स मीन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत साल। एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन डोंकी सीड्स सिंस आई मेट माई अंकल एंड आंटी, मेरा आंटी अंकल को मिलके बहुत साल हो गया। इट हैज़ बीन डोंकी सीड्स सिंस आई मेट माई अंकल एंड आंटी। देन for this well you study well and keep your brain. When you want to deal and talk with a different type of people, qualified people, you can use it. I'm telling every day, you must be fluent in English. I don't say I can speak English, but me speak English without grammatical mistake perfectly. It must be a gift of the gab. What is the meaning gift of the gab? Able to speak fluently, अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, an advocate should have the gift of the gab, GAFT, gift of the gab, GAB, mean able to speak perfectly. अभी आपको है सब, ऐसा आदमी को आपको ऐसा होना चाहिए, एडवोकेट, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑल टाइप ऑफ एजुकेटेड पीपल शुड हैव गिफ्ट ऑफ द गैब, एकदम अच्छी तरह से बात करने का होना चाहिए, इसको बोलते हैं गिफ्ट, GIFT, gift of the gab, GAB. Example, my elder sister has got the gift of the gab as she is an advocate. Okay, my dear students, study all this. Have a nice